الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. آپ سب کو ایک بار پھر قرآن کلاس میں مرحبا، خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ دن اور آنے والا ہر دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہو، آمین. پچھلی کلاس میں ہم را کے قواعد مکمل کر چکے تھے. آج ہم حمزہ کی اقسام کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بنیادی طور پر حمزہ کی دو اقسام ہیں، اصلی اور زائدہ. حمزہ اصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں آئے، یعنی جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہو اور کبھی حذف نہ ہوتا ہو. مثلا امارا، القیا. دوسری قسم ہے حمزہ زائدہ. حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ آئے، یعنی وہ حمزہ جو کلام کے شروع میں آئے تو پڑھا جائے، مگر کلام یا عبارت کے درمیان میں آئے تو گر جائے. جیسے فجرت، یہ اصل میں فجرت تھا، تو یہ درمیانے کلام میں ہونے کی وجہ سے حمزہ زائدہ گر گیا تو یہ فجرت بن گیا. امیر ارتابو، یہ اصل میں ارتابو تھا، درمیانے کلام میں ہونے کی وجہ سے حمزہ زائدہ گر گیا تو یہ امیر ارتابو بن گیا. لانفصام، یہ اصل میں لا انفصام تھا، تو حمزہ زائدہ درمیانے کلام میں ہونے کی وجہ سے گر گیا تو یہ لانفصام ہو گیا. حمزہ زائدہ کی آگے دو اقسام ہیں، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ. حمزہ قطعیہ وہ حمزہ زائدہ جو وصل کلام یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہ گرے، جیسے احمدو کا حمزہ. حمزہ وصلیہ وہ حمزہ زائدہ جو ابتدائی کلام میں پڑھا جائے لیکن وصل کلام میں گر جائے، حذف ہو جائے. جیسے العالمین، اس میں حمزہ وصلی ابتدائی کلام میں ہونے کی وجہ سے پڑھا گیا ہے، اور رب العالمین یہاں حمزہ وصلی کلام میں حذف ہو گیا ہے. آئیے اب ایک نظر اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. حمزہ کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ. حمزہ اصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ ہوتا ہے اور جو پڑھا بھی جاتا ہے. یہ حمزہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، حروف اصلیہ کے مقابلے میں آتا ہے، اور یہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا یعنی گرتا نہیں ہے. حمزہ زائدہ یہ کلام کے درمیان میں آئے تو گر جاتا ہے، پہلی کلام دوسری کلام سے مل جاتی ہے، اس لیے اسے وصلی کہتے ہیں.
ये इजाफी होता है, इसलिए इसे जायदा भी कहते हैं। ये कलाम के शुरू में आए तो पढ़ा जाता है और अगर दरमियान में आ जाए तो गिर जाता है। इसकी आगे दो इकसाम हैं, हमजा जायदा वस्ली और हमजा जायदा क़तई। हमजा जायदा वस्ली वो हमजा जो इब्तदाई कलाम में पढ़ा जाता है लेकिन मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है, हज़्फ हो जाता है। और हमजा जायदा क़तई वो हमजा जायदा जो वस्ल कलाम में गिरता नहीं, यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में हज़्फ नहीं होता, गिरता नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सबक की समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। अब हम देखते हैं दो हमजा एक या दो कलमों में जमा हो तो हमजा की इक़साम। पढ़ने के एतबार से हमजा की चार इक़साम हैं, यानी दो हमजा जब एक या दो कलमों में जमा हो तो इसकी चार इक़साम हैं। तहक़ीक़, तस्हील, इब्दाल और हज़्फ। तहक़ीक़ के लुग़वी माना है खूब ज़ाहिर करना, वाज़ेह करना। और इस्तिलाह तजवीद में हमजा को उसके असली मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ ज़ाहिर करके यानी वाज़ेह करके पढ़ने को तहक़ीक़ कहते हैं। दूसरी किस्म है तस्हील। तस्हील के लुग़वी माना है आसान करना। और इस्तिलाह तजवीद में हमजा को तहक़ीक़ और इब्दाल की दरमियानी हालत के साथ पढ़ने को तस्हील कहते हैं। तीसरी किस्म है इब्दाल। इब्दाल के लुग़वी माना है बदलना। और इस्तिलाह तजवीद में दूसरे हमजा को मा क़ब्ल हर्फ की हरकत के मुताबिक हरफ़े मद्दा से बदलने को इब्दाल कहते हैं। यानी जब दो हमजा कलाम में आ जाएं तो दूसरे हमजा को पहले वाले हमजा की हरकत हमजा की जो मा क़ब्ल हर्फ है उसकी हरकत के मुताबिक हरफ़े मद्दा से बदलने को इब्दाल कहते हैं। हज़्फ चौथी किस्म है। इसके लुग़वी माना है गिरा देना, हज़्फ कर देना। और इस्तिलाह तजवीद में जब दो हमजा जमा हो जाएं और उनमें पहला हमजा क़तई मफ्तूह हो और दूसरा हमजा वस्ली मकसूर हो तो दूसरे हमजा को गिरा कर पढ़ने को हज़्फ कहते हैं। जब दो हमजा जमा हो, उनमें पहला हमजा क़तई भी हो और मफ्तूह भी हो, क़तई मफ्तूह हो और दूसरा हमजा वस्ली भी हो और मकसूर भी हो, वस्ली मकसूर हो, तो दूसरे हमजा को गिराकर पढ़ने को हज़्फ कहते हैं। अब हम कायदा देखते हैं। तहक़ीक़ जब दो हमजा क़तई एक या दो कलमों में जमा हो जाएं तो दोनों को खूब ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए। जब कलाम में दो हमजा क़तई एक साथ जमा हो जाएं तो दोनों को खूब वाज़ेह करके ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। जैसे तुम, यहाँ पे दो हमजा जमा है तो इनको खूब वाज़ेह करके पढ़ेंगे। तुम अकेला नहीं कहेंगे, तुम। इब्दाल को देखते हैं। दो हमजा एक जगह इस तरह जमा हो कि पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन हो तो दूसरे हमजा को मा क़ब्ल हर्फ की हरकत के मुताबिक हरफ़े मद्दा से बदल देते हैं। दो हमजा एक जगह इस तरह हो कि पहला मुतहर्रिक हो दूसरा साकिन हो तो दूसरे हमजा को मा क़ब्ल हर्फ की हरकत के मुताबिक हरफ़े मद्दा से बदल देते हैं। जैसे ये आमाना था, इसको आमाना कर दिया। दो हमजा एक जगह इस तरह जमा हो कि पहला क़तई दूसरा वस्ली, तो तस्हील और इब्दाल दोनों जायज़ हैं। जब दो हमजा
क़तई इस तरह जमा हो कि पहला क़तई हो और दूसरा वसली हो, तो फिर वहाँ पर तसहील और इब्दाल दोनों कायदे जायज़ हैं। जैसे ये अल आना था, ये तो जब हमने इसको जमा किया तो ये अल आना हो गया, ये अल्लाहु था, अल्लाहु बन गया। तसहील दो हमजा क़तई, वो हमजा जो पढ़े जाते हैं उनको हमजा क़तई कहा जाता है। दो हमजा क़तई का एक जगह जमा होना तसहील कहलाता है। जैसे ये जामीज था, तो जब हमने यहाँ पे इसको जमा करके पढ़ा तो जामी बन गया। ये दो हमजा एक जगह ऐसे जमा हो, पहला क़तई दूसरा वसली, तो तसहील और इब्दाल दोनों जायज़ हैं। हमने पीछे तसहील का पढ़ा कि तहक़ीक़ की तरह इसको बिल्कुल वाज़े करके खूब ज़ाहिर करके भी नहीं पढ़ते और इब्दाल की तरह बदल कर भी नहीं पढ़ते। इन दोनों की दरमियानी कैफियत जो होती है वो तसहील कहलाती है। दो हमजा एक जगह ऐसे जमा हो, पहला क़तई दूसरा वसली हो, तो तसहील और इब्दाल दोनों जायज़ हैं। जैसे अल आना था तो ये अल आना बन गया, अल्लाहु था, ये अल्लाहु बन गया। चौथी किस्म है हज़्फ़। दो हमजा एक जगह इस तरह जमा हो, पहला क़तई दूसरा मफ्तूह हो और पहला क़तई मफ्तूह हो और दूसरा वसली मकसूर हो, तो दूसरे को हज़्फ़ करके पढ़ते हैं। जैसे ये इस्तखबरता था, तो इसको जब हमने दूसरे को हज़्फ़ किया तो ये अस्तखबरता बन गया। इब्दाल का कायदा कुरान पाक में 6 जगह पर आया है। अल आना सूरह यूनुस में 2 बार है। ज़ाकरीन ये सूरह इनाम में 2 बार है। अल्लाहु ये सूरह यूनुस में 1 बार है और 1 बार सूरह नमल में है। अब हम हमजा और अलिफ में फ़र्क देखते हैं। अलिफ नरमी से, जबकि हमजा सख्ती से पढ़ा जाता है। अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती, जबकि हमजा पर तीनों हरकतें आती हैं, ज़ब्र, ज़ेर और पेश। अलिफ कलाम के दरमियान और आखिर में आता है, जबकि हमजा हर जगह आता है। अलिफ की सिर्फ एक ही शक्ल है, अलिफ से पहले ज़ब्र होती है, जबकि हमजा अपनी शक्ल बदलता रहता है। उम्मीद है आपको आज के सबक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। इसके साथ ही हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा इस क्लास में जमा होना, इसका सुनना, इसका पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान करीम ही अल्लाह ताला की वो आखिरी मुकम्मल किताब है, वो मुकम्मल दस्तूर हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराहल में रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहल में इससे रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अहले कुरान में शामिल फरमा ले और उन लोगों में शामिल फरमा ले जिन्हें अल्लाह ताला हिदायत देता है। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला बना दे, हमारे ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व सुकून, सब्र व शुक्र और आजिज़ी जैसी अजीम नेमतें अता फरमाए। हमें अपने हिदायत याफ्ता शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के फितना और फसाद, हासदों के हसद, शरीरों के शर से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह ताला हमारी दुआएं अपनी शान के मुताबिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।